A very good morning, respected management, Principal Mrs. Shobna Anand, teachers, non-teaching staff, parents and my dear students of BKM High School. It is my proud privilege to extend a warm welcome to each one of you at this online celebration of our country's 72nd Republic Day. We invite you to pay homage and celebrate the legacy of this great occasion. Children, on the 26th of January 1950, the Indian Constitution came into effect, granting our citizens the power to govern themselves after almost 200 years of struggle. Children, today was the new era in 1950 when the inhabitants of this glorious land were bestowed with certain rights in the form of the Constitution. They include the right to express ourselves freely, the right to practice any religion of our choice, the right to education, and many more. These rights give us the freedom to live enriched lives in the bosom of our generous motherland. But rights are incomplete without the duties being performed. So, let us all pledge to perform our duties in any capacity according to our abilities. The coronavirus pandemic has posed many challenges to the stability of our nation. Yet, with unity, peace and justice shall prevail, and our homeland shall be returned to her former glory. You little ones are the trailblazers. So remember, 2020 has gone. Now, in 2021, let your light shine on. Wishing all of you a very happy Republic Day. Mother India, please hear the cries of your children and make the virus disappear through the effectiveness of the vaccines. God bless and thank you. A very good morning to our respected management, principal, members of the teaching and the non-teaching staff, parents and my dear children. Today, on the 26th of January 2021, we celebrate the 72 Republic Day of our country. India was defined as Republic in the year 1950 when a constitution came into place. I would like to take the opportunity to present a patriotic song to each one of you as a way of celebrating this special occasion. The words of the nationalist piece, "Ehh Watan," pay homage to the great freedom fighter of our nation who led India to become a free sovereign state. It is also a pure prayer asking the Almighty to keep our beloved mother prosperous every day. The lyrics proclaim that India is our manzil, meaning destination, while being Indian is our true pehchan, meaning identity. Lastly, it beckons our young children to be forth and a torch barrier for the motherland while demanding that we as adults shine light in the light direction for our bright stars to follow. तो इस प्रकार हम सब कर्तव्य करते हैं कि यह इस गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हम सब निर्णय करेंगे कि हम सदा अपनी माँ भारत देश को गर्व महसूस होने का अद्भुत मौका
सदा प्रस्तुत करेंगे। अंत में आज के इस मंगलमय दिवस पर यह वादा करेंगे कि देश के हित के लिए और समृद्धि के लिए भारत के संविधान में दिए हुए हर नियम का पालन अनुशासन और निष्ठा के साथ हमेशा करेंगे। जय हिंद। हैप्पी रिपब्लिक डे। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ पे साध रहे तू, कुर्बान में जान तुझ पे साध रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे साध रहे तू। ऐ वतन रे आबाद रहे तू, ऐ जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। डीकेएम शाळेचे सर्व संस्थापक पदाधिकारी, आपल्या शाळेच्या मुख्याध्यापिका माननीय शोभना आनंद, प्राथमिक विभागाला मार्गदर्शन करणाऱ्या आदरणीय भरता मॅडम, सर्व शाळेला वेळोवेळी मार्गदर्शन करणाऱ्या मेघना मॅडम आणि माझे सर्व शिक्षक शिक्षिका, डीकेएम शाळेतील सर्व पालक वर्ग, आपल्या कार्यालयातील सर्व कर्मचारी वर्ग, डीकेएम शाळेतील 1ली ते 10वी पर्यंत शिकणारे सर्व माझे विद्यार्थी विद्यार्थिनी, मित्र मैत्रिणींनो, आज आपल्या शाळेतील बागुल सर 26 जानेवारीबद्दल थोडक्यात माहिती सांगणार आहे, ती आपण शांत चित्ताने ऐकाल। झेंडा आमुचा प्रिय देशाचा फडकत वरी महान, करीतो आम्ही प्रणाम याला, करीतो आम्ही प्रणाम। लढले गांधी यांच्या करिता, टिळक नेहरू लढले जनता, समर धुरंधर वीर खरोखर अर्पून गेले प्राण। अशा प्रकारे आपला देश स्वतंत्र करण्यासाठी अनेक थोर व्यक्तींनी तुरुंगवास भोगला, बलिदान दिले। तेव्हा भारत देश 15 ऑगस्ट 1947 साली स्वतंत्र झाला। या देशाची राज्यव्यवस्था कशी ठेवावी, कोणते नियम असावेत, ते कोणत्या पद्धतीने वापरले जावेत, लोकांच्या सुख सोयींसाठी कोणत्या योजना असाव्यात, या बाबतीत सर्व पुढारी मंडळींनी एक योजना करण्याचे ठरवले। त्यावेळचे भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या मंत्रिमंडळात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कायद्याचे मंत्री असताना त्यांच्या अध्यक्षतेखाली 7 सदस्यांची एक समिती तयार करण्यात आली आणि या समितीने सखोल असा अभ्यास करून त्या ठिकाणी भारताचे एक संविधान राज्यघटना तयार केली।
सर्व जाती धर्माचा विचार करून कोणावरही अन्याय अत्याचार न होता सर्वसामान्य लोकांचा त्या ठिकाणी विचार करून ती घटना तयार करण्यात आली. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी खूप मेहनत करून दिवस रात्र कष्ट करून ही घटना तयार केली. ही घटना लिहिण्यासाठी किती कालावधी लागला त्याबद्दल मी थोडक्यात सांगतोय. 2 वर्ष 11 महिने आणि 17 दिवस 2 वर्ष 11 महिने 17 दिवस एवढा कालावधी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी खूप मेहनत करून ही घटना समिती तयार केली. तयार करण्याचे काम एकट्या बाबासाहेबांनी केले म्हणून त्यांना भारतीय घटनेचे शिल्पकार असे म्हटले जाते. ही जी घटना आहे ही 26 जानेवारी 1950 रोजी अंमलात आली. यातूनच लोकशाही जन्माला आली. लोकशाही म्हणजे लोकांसाठी लोकांकडून चालवलेलं राज्य म्हणजे लोकशाही. म्हणून या दिवसाला खूप महत्त्व आहे. 26 जानेवारीला प्रजासत्ताक दिन असंही म्हटलं. प्रजेच्या हाती सत्ता कारभार दिला गेला आणि प्रत्येक व्यक्तीला या ठिकाणी आपलं स्वतःचं मत मांडण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. ज्या पद्धतीने निसर्गामध्ये एखाद्या झाडावर कळी येते त्या कळीला फुलण्याचा अधिकार तो कोणीही रोखू शकत नाही. त्याच पद्धतीने या भारत देशामध्ये प्रत्येक व्यक्ती जी काही जन्माला येते प्रत्येकाला आपला हक्क बजावण्याचा त्या ठिकाणी आपल्यामध्ये असणारे कला कौशल्य गुण त्या ठिकाणी प्रकट करण्याचा अधिकार तो कोणीही रोखू शकत नाही. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सर्व जाती धर्म पंथांचा विचार करून त्या ठिकाणी राज्यघटना तयार केली आणि ती 26 जानेवारी 1950 रोजी अंमलात आली. अशा या स्वतंत्र भारतामध्ये माझा जन्म झाला याचा मला अभिमान आहे. आपला भारत देशाची संस्कृती इतिहास खूप महान आहे. अशा या पावनभूमीवरती राम कृष्ण त्याच्यानंतर ज्यांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी शून्यातनं हे हिंदवी स्वराज्य स्थापन केले. त्यांच्या नावाने आमच्या अंगामध्ये एक वेगळ्याच प्रकारची शक्ती प्रकट होते. अशा या भारत देशाबद्दल बोलायचं झालं तर इंडिया इज अ ॲग्रिकल्चर कंट्री. भारत हा शेतीप्रधान देश आहे. करोनासारख्या महामारीच्या काळामध्ये आपण मुंबईसारख्या शहरामध्ये घरात राहा सुरक्षित राहा बाहेर पडाल तर मराल या म्हणीप्रमाणे भारतातील प्रत्येक शेतकरी एक दिवससुद्धा घरी न थांबता शेतामध्ये तो कष्ट करत होता. आपल्यासाठी अन्नधान्य भाजीपाला फळे तो उपलब्ध करून देत होता. अशा या महामारीच्या काळातसुद्धा तो आपल्या जीवाची पर्वा न करता शेतकरी आपल्यासाठी दिवस रात्र कष्ट करत होता. असा हा जगाचा पोशिंदा. त्या शेतकऱ्यांविषयी आपल्या मनामध्ये जिव्हाळा आपुलकी प्रेम असलं पाहिजे. त्यांच्यासाठी कोणकोणत्या सुखसुविधा देता येतील आपण याचा सर्वांनी विचार करायला पाहिजे. शेवटी एवढेच म्हणावेसे वाटते, स्वर्ग से सुंदर देश हमारा भारत जिसका नाम, धरती अंबर पर्वत नदिया है जो इसकी शान. जय हिंद जय महाराष्ट्र.
आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस बार भारत अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। भारत के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं, बल्कि गौरव और सम्मान का दिन है। यह दिवस हर भारतीय का अभिमान है। अनगिनत लोगों की कुर्बानी के बाद भारत माँ को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, लेकिन उसे स्वतंत्रता का आकार 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर भारत का संविधान लागू किया गया था। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। संविधान लागू होने के बाद हमारा देश भारत एक गणतंत्र देश बन गया। इसके 6 मिनट बाद 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस के दरबार हॉल में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। गणतंत्र का अर्थ है देश में रहने वाले लोगों की सर्वोच्च शक्ति और सही दिशा में देश के नेतृत्व के लिए राजनीतिक नेता के रूप में अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए केवल जनता के पास अधिकार है। इसलिए भारत एक गणतंत्र देश है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भव्य गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन होता है। राष्ट्रपति तिरंगा झंडा फहराते हैं। राष्ट्रगान और ध्वजारोहण के साथ उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। अशोक चक्र और कीर्ति चक्र जैसे महत्वपूर्ण सम्मान दिए जाते हैं। राजपथ पर निकलने वाली झांकियाँ में भारत की विविधता में एकता की झलक दिखती है। परेड में भारत की तीनों सेना, नौसेना, थल सेना और वायुसेना की टुकड़ी शामिल होती है और सेना की ताकत दिखती है। आज़ादी मिलने और संविधान लागू होने के इतने वर्षों बाद भी आज भारत अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा, आतंकवाद, गरीबी, अशिक्षा जैसी समस्याओं से लड़ रहा है। हम सभी को एक होकर इन समस्याओं को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। भारत को जब तक इस समस्याओं से बाहर नहीं निकालते, तब तक स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूर्ण नहीं होगा। एक होकर प्रयास करने से श्रेष्ठ और विकसित भारत का निर्माण होगा। इसी के साथ मैं मेरे भाषण का समापन करना चाहूँगी। जय हिंद।
Very good morning and a warm welcome to the trustee, principal, teachers, non-teaching staff, parents and students present here. It is with great pride that I present this next aspect in the sequence of events planned for the 72 Republic Day of our great nation India. As we are aware, the coronavirus pandemic has created so much conflict in our lives due to the immense loss that we have suffered. Most of us have worked and studied from home, but there were brave warriors who stepped out every day to protect us and keep our country safe, healthy and pandemic free. So today, let us raise our hands to salute their generous humans who are doctors, nurses, police, sweepers and other essential workers. Happy Republic Day! हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋत्विका पुजारी है। मैं 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ डीकेएम हाई स्कूल से। हमें भी है हमारा परिवार, फिर भी कोरोना से लड़ने को तैयार। हम आपकी हिफाजत करें, फिर चाहे हमारे ऊपर पत्थरबाज क्या घुसे, साथ मिलकर कोरोना को खत्म करें, लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहे, सुरक्षित रहे, हमारा सैल्यूट करें। जय हिंद। Please support doctors. Thank you. Good morning. This is Sanika More. Giving thanks is the highest form of thought and gratitude is the happiest of all human emotions. Therefore, on this celebratory occasion of our country's 72nd Republic Day, I would like to express my heartfelt gratitude to a number of valuable people without whom this online function wouldn't have been successful. On the behalf of primary section of BKM High School, extend our heartfelt sincere thanks to the management, principal madam, teachers, non-teaching staff and our dear parents for giving us valuable support in all the activities that we undertake throughout the years. Thanks for encouraging and cooperating with us in this. Lastly, this all is not possible without our lovely students. Hope you all support and guide us in the future too. Thank you. Once again, Happy Republic Day. Jai Hind, Jai Maharashtra.